Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So students, today we will discuss class 10 biology. Chapter number 12, coordination and control. Okay students, in today's lecture we will discuss the introduction to human nervous system, neuron, in which we will discuss structure of neuron and types of neurons as well. Then we will discuss nerves and its types. Then we will discuss the introduction to major divisions of nervous system, in which we will discuss the central nervous system. So in central nervous system we will discuss the brain and its parts like forebrain in detail. First of all, we will discuss the introduction to human nervous system. So students, the nervous system in human and in other higher animals is composed of two major parts. It means कि nervous system human beings की body में और other high animals की body में जो present होता है वो आपकी पूरी body control करता है, coordination में help करता है, movements control करता है, and it consists of two major parts. First one, central nervous system. So what about central nervous system? Basically it comprises coordinators, that is brain and spinal cord. It means कि central nervous system में brain and spinal cord present होते हैं. And what about second one? Second system is peripheral nervous system. So what about peripheral nervous system? Basically it consists of nerves that arise from central nervous system and spread in different parts of the body. It means कि आपके peripheral nervous system में nerves present होती हैं जो कि central nervous system से arise होती है. It means कि brain से separately होती हैं, spinal cord से separately arise होती हैं और ये collectively peripheral nervous system बनाती हैं. Then ये आपके पूरा network जो होता है nerves का आपकी body में spread होता है. Now we will discuss the nerve cell or neurons. So students, before we will discuss our main topic, you must have knowledge about the neuron. What are neurons? Basically nerve cell or neuron is the unit of the nervous system. The human nervous system consists of billions of neurons plus supporting neuroglial cells. अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, उसमें बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होते हैं. मींस के ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं. देन ह्यूमन बींग्स में के नर्वस सिस्टम में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं प्लस स्पॉटिंग न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट आर न्यूरोग्लाइल सेल्स? बेसिकली न्यूरोग्लाइल सेल्स आर दी स्पॉटिंग सेल्स. ये स्पॉटिंग सेल्स होते हैं जो कि लिपिड की लेयर बनाते हैं ओवर दी न्यूरॉन और जो इनके एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम में रखते हैं नर्वस सिस्टम को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी structure of neuron. The nucleus and most of the cytoplasm of neuron is located in its cell body. As you can see in the diagram, it is the structure of the neuron. अभी जो न्यूरॉन है इसमें जो सेल बॉडी है अपर पोर्शन जो है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. देन डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स. अब आपकी जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की उसमें से एक लॉन्ग प्रोसेस ओरिजिनेट होता है विच इज कॉल्ड एक्सॉन और शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं विच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. Now we will discuss the processes or projections of neurons. Okay students, as I have told you earlier about the processes or projections of neuron, different processes extend out from the cell body. अब सेल बॉडी जो है न्यूरॉन्स की उसमें से डिफरेंट प्रोजेक्शंस, डिफरेंट एक्सटेंशंस ओरिजिनेट होती हैं. लाइक फर्स्ट वन डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स शॉर्ट प्रोजेक्शंस एंड शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं सेल बॉडी से. एंड एक्सॉन्स, एक्सॉन्स भी सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं और ये लॉन्ग प्रोजेक्शंस होती हैं, ये लॉन्ग ब्रांच्ड होती हैं, लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं जो कि सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं. देन व्हाट अबाउट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स? बेसिकली डेंड्राइट्स कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी. अब ये जो मैसेजेस होते हैं आपके वो डेंड्राइट्स जो हैं वो कंडक्ट करता है टुवर्ड्स सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है. देन व्हाट अबाउट एक्सॉन्स? एक्सॉन्स जो है नर्व इंपल्सेस, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सेल बॉडी से अवे लेके जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल. Okay students, now we will discuss the Schwann cells. What are Schwann cells? Schwann cells are special neuroglial cells located at regular intervals along axons.
अब श्वान सेल्स जो होते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द न्यूरोग्लाइल सेल्स, बेसिकली स्पॉटिंग सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम का एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं, इक्विलिब्रियम पे रखते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हियर इज अ एक्सॉन और एक्सॉन पे आपको श्वान सेल्स विजिबल होंगे, ये श्वान सेल्स हैं। अब इनके बिटवीन गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट, myelin sheath. In some neurons, Schwann cells secrete a fatty layer called myelin sheath over axons. As you can see in the diagram, Schwann cells जो होते हैं फैटी लेयर, लिपिड की लेयर स्क्रीट करते हैं ओवर द एक्सॉन्स। बेसिकली इनका क्या पर्पस होता है? माइलिन शेथ जो होती है एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट, nodes of Ranvier. So between the areas of the myelin on an axon, there are non-myelinated points called the nodes of Ranvier. As you can see in the diagram, ये myelin sheath है, myelin sheath के between आपको नॉन माइलिनेटेड एरियाज नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये नॉन माइलिनेटेड एरियाज हैं। अब ये नॉन माइलिनेटेड एरियाज को क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। देन myelin sheath is an insulator, so the membrane coated with this sheath doesn't conduct nerve impulse. So students, जिन जिन एरियाज में myelin sheath प्रेजेंट है वहां पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती, ये इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। देन ये जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज ब्लू कलर के आपको विजिबल हो रही हैं, इनके अंदर जो है वो क्या होती है? नर्व इम्पल्स जो होती है ट्रांसमिट होती है, और ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। बेसिकली इम्पल्सेस जंप ओवर द एरियाज ऑफ द माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड, सच इम्पल्सेस आर कॉल्ड सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। इट मीन्स के अब ये जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज हैं ब्लू कलर के नोड्स ऑफ रेनवियर, इनमें से आपकी जो नर्व इम्पल्स होती है वो क्या करती है? जंप करती है। मीन्स कि ये नॉन माइलिनेटेड एरिया है और बिटवीन इनके जो माइलिनेटेड एरिया, माइलिनेटेड एरिया के ऊपर से क्या करती है? नर्व इम्पल्स जंप करती हैं। देन नॉन माइलिनेटेड एरियाज में आती हैं, फिर जंप करती हैं, फिर नॉन माइलिनेटेड एरियाज में आती हैं, फिर जंप करती हैं, नॉन माइलिनेटेड एरियाज में आती हैं। सो दीज जंपिंग इम्पल्सेस आर कॉल्ड दी सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। और सॉल्टेटरी इम्पल्सेस का एक बेसिकली ये होता है पर्पस, ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, स्पीड अप कर देता है। Types of neurons. Okay students, on the basis of their functions, neurons are of three types. Neurons को उनकी functions के base पे three categories में divide करते हैं, classify करते हैं। Like there are the three types of neurons. First sensory neurons, second interneurons, third motor neurons. Now we will discuss each of these neurons in detail. Types of neurons. Okay students, now we will discuss the types of neurons in detail. So firstly we will discuss the sensory neurons, its structure and function as well. Okay students, sensory neurons conduct sensory information in the form of nerve impulse from receptors towards the CNS. It means कि sensory neurons का basically function क्या होता है? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स और उनको आगे ट्रांसफर करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर करती हैं। इट मींस के रिसेप्टर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिटवीन जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। देन व्हाट अबाउट इट्स स्ट्रक्चर? सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है बिटवीन, देन इसमें से सिंगल डेंड्राइट और सिंगल एक्सॉन ओरिजिनेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल। लाइक दीज फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो इंटरन्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करती हैं। व्हाट अबाउट इट्स फंक्शन? दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करती हैं? ये ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको रीड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और देन जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ये इंफॉर्मेशन आगे फर्दर इफेक्टर तक ट्रांसफर करे। Okay students, what about its structure? They have many dendrites and axons as you can see in the diagram.
इसमें सेल बॉडी सेंटर में है और यहाँ से बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और एक्सॉन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं. Now we will discuss the third category of neuron, motor neurons. We will discuss its structure and function. Firstly, we will discuss its function, like they carry information from interneurons. Motor neurons, interneuron जो कि brain and spinal cord में present है, उनमें से information receive करती हैं, then उसको transfer करती हैं muscles और glands में जो कि effectors होते हैं. It means के motor neurons connection create कर रही हैं between coordinators, brain and spinal cord, and effectors जो कि muscles and glands हैं. Then what about its structure? अगर इसका आप structure observe करें तो then they have many dendrites but only one axon, as you can see in the diagram. अब ये जो सेल बॉडी है इसमें से many dendrites originate हो रही हैं, short projections originate हो रही हैं और सेल बॉडी में से single axon originate हो रहा है. Now we will discuss the nerves and its types in detail. Okay students, what about nerves? A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made up of lipid. It means के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी लॉन्ग प्रोजेक्शंस लाइक एक्सॉन्स, उनकी कलेक्शन को नर्व्स कहते हैं. अब ये जो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स होते हैं इनके ऊपर लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि कलेक्टिवली नर्व बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन. Based on the property of axons, the nerves are classified into the three types. Axons की property की base पे nerves को three categories में divide करते हैं, like first sensory nerves, second motor nerves, third mixed nerves. So students, what about these nerves? We will discuss it. So students, sensory nerves contains the axons of sensory neurons only. It means कि sensory nerves के अंदर just सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट अबाउट मोटर नर्व्स? मोटर नर्व्स की कंटेन्स दी एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली. इट मींस के मोटर नर्व्स के अंदर जस्ट मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. देन व्हाट अबाउट मिक्स्ड नर्व्स? मिक्स्ड नर्व्स कंटेन्स दी एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. इट मींस के जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं उनके अंदर मोटर and sensory neurons दोनों के axons present होते हैं. So this is the information regarding the nerves and its types.